Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the electrolysis. Let's start. Beta, what is electrolysis and how this phenomena will work? We'll discuss all these things in this video. So beta, electrolysis है क्या? Electro means electricity. Lysis means breakdown. So beta, electricity की मदद से breakdown करना है. किनको breakdown करना है? Beta, we'll use ionic compounds. We will use ionic compounds. और ionic compounds में से electricity pass होएगी, so they will convert into the ions. और बेटा electrolysis का phenomena start होएगा, यानी कि electricity is used to break down an ionic compound and it will dissociate into the ions. So ionic compound जिसमें ions मौजूद हैं, we have positive ion and we have negative ion, so this ionic compound will dissociate into the ions when electricity passes through it, and this whole phenomena is called as electrolysis. Electricity की मदद से breakdown करना, lysis का मतलब breakdown, electricity, so electricity pass करेंगे ionic compound में से, so it will break down, it will dissociate into the ions. So ionic compound की word अगर use करते हो, it is not the complete statement. We must know कि ionic compounds, कौन से ionic compounds electrolysis show कर सकते हैं? बेटा only aqueous or molten. Remember this point. Molten ionic compound are conductors. Aqueous ionic compounds are conductors. If we have any solid ionic compound, बेटा वो conduct ही नहीं करेगा electricity को. Electricity उसमें से pass ही नहीं करेगी. Ions में वो convert हो ही नहीं सकता. If you have NaCl, is this possible कि इसकी electrolysis हो जाए? If it is in the solid state, जी नहीं. NaCl solid state में होएगा तो इसकी electrolysis नहीं हो सकती. NaCl if exists in the form of aqueous state, so इसकी electrolysis हो जाएगी. If we have NaCl molten state में, that is liquid state, तो बेटा इसकी electrolysis हो जाएगी. So we have to understand the basic concept के electrical conductors कौन हैं? So these are ionic conductors. यहाँ पे हम ionic compounds का concept use कर रहे हैं. Free ions अगर होंगे, so electricity conduct होएगी. और free ions ionic compound में in the form of liquid, molten state में या aqueous state में exist करते हैं. ठीक है, free ions. तो ये concept हमारे पास हो गया, यानी कि electricity इनमें से pass करेंगे, ये ions में convert हो जाएंगे and ions will move to their respective electrodes. अब ये electrodes क्या है? यहाँ पे एक term आ रही है electrodes. We have two types of electrodes. One is cathode and one is anode. Cathode and we have anode. For this, you can remember this mnemonic, panic. P-A-N-I-C, panic. Positive anode, positive, P से positive, anode, negative is cathode. Panic. तो बेटा इस निमोनिक से
चाहे याद रखें या वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैथोड इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिव, ये रॉड्स होते हैं which can conduct electricity, that's why they are called electrodes. ठीक है, rods which can conduct electricity. बेटा इसका इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना क्या होता है, किस तरह से इसका ऑपरेटर सेटअप होता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस. और पहले वी विल यूज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट. नाउ आई एम यूजिंग अ वर्ड इलेक्ट्रोलाइट. बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हाट आर electrolytes? Electrolytes. Beta, electrolytes are those compounds which are used into the electrolysis process, which are ionic compounds in the molten or aqueous state, or the other compounds which can conduct electricity and convert it into the ions and dissociates into the ions. वो तमाम compounds कहलाते हैं electrolytes. So this ionic compound, ये जो aqueous और molten है, क्या मैं इनको कह सकता हूँ electrolytes? Yes, these are electrolytes. ठीक है, molten और aqueous state में. And apart from the ionic compounds, we have some other compounds जो कि कोवेलेंट इन नेचर हैं, बट दे आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स. तो बेटा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना शो करते हैं. ठीक हो गया जी. सो इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten electrolytes. और ये बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का. जो भी कंपाउंड यूज हुआ है उसी के आयन्स आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड when we will do electrolysis of molten NaCl. Let's take NaCl. NaCl आपके पास है लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई आपने. It will dissociate into the ions Na positive and Cl negative. So बेटा ये actually this is the apparatus in which we have used the electrolytes. और electrolyte यहां पे कौन सा यूज किया हुआ है, NaCl लिक्विड स्टेट में, NaCl. and these are electrodes जो कि बैटरी के साथ अटैच हैं. You can see terminals over here. जो smaller terminal है, that is negative. This one is negative and this terminal is positive. So बेटा negative terminal जिस electrode के साथ अटैच है, that is called as cathode. And the positive terminal is attached with the electrode that is named as anode. ठीक हो गया, anode. This one is anode, this one is cathode. So बेटा इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होएगी, जो NaCl है, it will dissociate into the ions. Na positive and Cl negative में convert हो जाएगा. Na positive and Cl negative. Na positive, Cl negative. Na positive, Cl negative. So in this way, ions are moving in this liquid state. जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे फ्री आयन्स मौजूद हैं नाउ. सो बेटा जो कैथोड है, opposite charges attract each other, we know that. Opposite charges attract each other. Cathode is carrying a negative charge. So over here we have cathode. तो कैथोड पे कौन से आयन्स आ जाएंगे? कैथोड इज नेगेटिव. तो बेटा कौन सा आयन आ जाएगा एट कैथोड? What will happen? At cathode positive ions आ जाएंगे. Because this one is negative. So Na positive
will discharge at cathode, and this is anode. So at anode, what will happen? Anode is positive, so negative ions will move towards anode. Negative ions. तो बेटा Cl नेगेटिव एनोड पे आ जाएगा. सो बेटा ये भी यहां पे डिस्चार्ज होएगा. किस तरह से डिस्चार्ज हो सकता है बेटा? जो भी आपके पास एनाइंस होंगे बेटा, दे जस्ट वांट टू कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर स्टेट. इफ यू हैव क्लोराइड आयन, तो वो चाहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना. अगर कहीं पे हाइड्रोजन आयन होएगा, सो वो कन्वर्ट होना चाहता है H2 में, जो कि उसकी स्टेबल स्टेट है. ठीक है. अगर आपके पास है आयोडाइड आयन, I2 में कन्वर्ट होना चाहता है. Br आयन है, ब्रोमाइड आयन है, Br2 में कन्वर्ट होना चाहता है. इफ वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन से ऑक्सीजन गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, या आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है. विल डिस्कस दीज थिंग्स. तो यहां पे वी हैव क्लोराइड आयन. सो क्लोराइड आयन wants to neutralize itself. ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन एटम में. क्लोरीन एटम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती नॉन मेटल. सो बेटा दिस क्लोराइड आयन, एक और क्लोराइड आयन विल शो द सेम प्रोसेस, और एक और क्लोरीन का एटम बनेगा. वो क्लोरीन के एटम्स आपस में मिलके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे. So if I will use two chloride ions here, two electrons will remove from this side, और chlorine gas will discharge at anode. तो बेटा chlorine gas discharge होएगी कहां पे? Anode. We will observe yellowish gas, greenish yellow gas at anode. And cathode पे what will happen? We have sodium ion. So these ions will migrate towards cathode, और ये cathode पे सोडियम आयन है. It will get these electrons. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा. So for balancing this equation, यहाँ पे आपके पास होएगा 2. So we have 2 sodium ions, we have 2 chloride ions. 2 chloride ions converted into the chlorine gas. Similarly, 2 sodium ions will get 2 electrons and converted into the 2 sodium metals. So बेटा this is happening at cathode. तो आपके पास प्रोडक्ट्स क्या आए? जो आयन्स हैं बेटा वही अपनी एक्चुअल स्टेट में आपके पास प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे. Na positive will convert into sodium metal, Cl negative will convert into the chlorine gas. So molten में जो आयन्स बनते हैं, जो फ्री आयन्स होते हैं, वही आपके पास प्रोडक्ट्स में आएंगे. बस यू हैव टू रिमेंबर कौन सा आयन कहां पे डिस्चार्ज होना है. This is the actual task. So we'll do few examples. यहां पे आपके पास है PbBr2. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? पहले हम वो देखते हैं इक्वेशन. We'll get Pb2 positive plus 2Br negative. तो बेटा this one is positive ion. So positive ion will move towards cathode. ये आ जाएगा cathode पे. And Br negative will move towards anode. Anode पे it will convert into bromine gas. Br2 reddish brown gas में convert हो जाएगा. And this one will convert into Pb lead metal में convert हो जाएगा. So this is happening at cathode and anode. So ये process कहाँ पे होएगा? It will happen at cathode. And bromine कहाँ पे होएगी? At anode. Reddish brown gas will observe. ठीक हो गया? इसी के साथ अगर एक और एग्जाम्पल दी जाए तो I think you are able to do that one also. If you have AgI, silver iodide, बेटा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस शो करवाएं. इसकी इलेक्ट्रोलिसिस बेटा अगर ये मॉल्टन स्टेट में होएगा, in that case it can give you the product. अगर सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन स्टेट में होता है, रिमेंबर जो हैलाइड्स होते हैं एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड हैलाइड्स, मर्करी हैलाइड्स, बाकी सॉल्यूबल होते हैं. हैलाइड्स आर सॉल्यूबल. हैलाइड्स आर सॉल्यूबल.
यानी कि हैलोजन के कंपाउंड्स सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन सिल्वर हैलाइड्स आर इनसॉल्यूबल, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, दे विल गिव यू प्रेसिपिटेट्स। सो बेटा जो सॉल्यूबल नहीं होते, जिनका सॉल्यूशन नहीं बनता, फ्री आयोन्स नहीं होंगे, दे विल नॉट शो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक हो गया? सो यहां पे आपको AgI मॉल्टन स्टेट में दिया जाए, पिघला हुआ हो, Ag पॉजिटिव अलग है, I नेगेटिव अलग है, तब इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होगा। ऑलराइट, सो now I am giving you one question and this is what you have to mention the answer. आपके पास है copper chloride in liquid state. So बेटा सबसे पहले तो हमने इसके बनाने हैं ions. Ions Cu2 positive and we'll get 2Cl negative. And in this way ये जो copper ion है, it will discharge at cathode. Cathode is negative, तो cathode की तरफ ये move करेगा and chloride ion will move towards anode. Anode is positive, तो positive पे negative ions will move towards anode और वहां पे discharge होंगे. So बेटा ये Cl negative है, anode पे क्या बनेगा? Cl2 बनेगा. कॉपर आयन है, कैथोड पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर मेटल में. एंड रिमेंबर द कलर ऑफ कॉपर मेटल, इट्स पिंक. और कॉपर सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव का जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर में होता है बेटा? दैट इज ब्लू सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये कलर्स याद रखिएगा. कॉपर के सॉल्यूशन का कलर ब्लू. ठीक हो गया? एंड कॉपर मेटल का कलर पिंक, इट्स अ पिंक मेटल. बेटा ये तो कॉन्सेप्ट था मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस का. अगर आपको कहा जाए एक्वियस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट, इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आई एम गिविंग यू फ्यू रूल्स. बेटा सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव आयॉन्स की रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए, केटाइंस की रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए. केटाइंस में रिएक्टिविटी ऑर्डर मैटर्स अ लॉट. मैं यहां पे कुछ रिएक्टिविटी ट्रेंड के रेफरेंस में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेंशन कर रहा हूं जिसमें केटाइंस आ जाएंगे. ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉन मेटल, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में यहां पे कंप्लीट लिख देता हूं. After Cl we have Au and at the end we have F2. ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं. ठीक हो गया? I2, Br2, Cl2, F2. ये कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज है जो MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अदरवाइज आपने अगर यही रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप ऑब्जर्व करो ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में, वहां पे स्लाइड चेंजिंग शो होती है. अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट वी हैव PSC माजिल, copper, mercury, silver and gold. So we have this reactivity trend जो कि यूज कहाँ पे हो रहा है? O levels में. And this one is used
इन इंटरमीडिएट बुक्स, FSC कंटेंट में ये यूज होता है. सो बेटा पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम. दिस इज कैल्शियम, ठीक है, नॉट कार्बन, दैट इज कैल्शियम Ca. दिस इज मैग्नीशियम, ठीक है. मैंने फर्स्ट अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, नॉट द सिंबल्स. दीज आर द फर्स्ट अल्फाबेट. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड. On this side, I have mentioned the symbols क्योंकि इनसे ज्यादा हमारा वास्ता पड़ेगा MDCAT में. For MDCAT, I'll recommend this one. Lithium, potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, chromium, iron, cadmium, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, iodine, that is iron. आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ना, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव. Ag, that is silver, this is mercury, this is bromine, this is chlorine, this is gold and this one is fluorine. बेटा reactivity series MDCAT के लिए I'll recommend this one. So जो metals reactivity में नीचे हैं, they are less reactive metals. From top to bottom reactivity decreases. From top to bottom reactivity decreases. For the metals, metals की हम बात कर रहे हैं, reactivity of the metals decreases. तो मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, reactivity of metals decreases downward. So this is the key concept. तो बेटा अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमने डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप हम फ्यू एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं. दिस इज द कंटेंट व्हिच वी हैव टू यूज ओवर हियर. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1. Less reactive cation will deposit at cathode. Less reactive cation will deposit at cathode. This is your rule number 1. Rule number 2. This is for anions. Anions के लिए rule number 2 को यूज कर रहा हूं. अगर आपके पास नाइट्रेट्स मौजूद हैं या सल्फेट्स मौजूद हैं, and that is for aqueous. For aqueous. अगर नाइट्रेट और सल्फेट्स मौजूद हैं और ऑन द अदर साइड वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि एक्वियस में आपके पास दो आयन्स आएंगे. फॉर एग्जांपल H2SO4 है अगर आपके पास, सो इसके फ्री आयन्स कौन कौन से होंगे? वी विल हैव H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन. एक्वियस मींस वाटर. वाटर के पास हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है. सो बेटा फर्स्ट रूल को सॉल्व करते हैं. पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड में यहां पे दोनों एक जैसे ही आयन है तो हाइड्रोजन ही डिपॉजिट होएगी कैथोड पे. सो हाइड्रोजन आयन्स विल मूव टुवर्ड्स कैथोड इन दिस वे और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. नाउ वी हैव 2 आयन्स जो कि नेगेटिव है, OH नेगेटिव एंड SO4 नेगेटिव. बेटा यहां पे अब कंपटीशन है विच विल डिस्चार्ज एट एनोड, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों मूव करेंगे एनोड पे. बट विच आयन विल डिस्चार्ज? बेटा वो आयन डिस्चार्ज होएगा, यहां पे रूल नंबर 2 में याद रखना है, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट विल नॉट डिस्चार्ज. ये रूल याद रख लो. जब कभी भी एक्वियस सॉल्यूशन आ जाए आपके पास, सल्फेट का या नाइट्रेट का, only hydroxide ions will discharge. This is the rule number 2. So OH will discharge in the case of nitrate or sulfate का solution.
aqueous solution of sulfates and nitrates में only hydroxide ions will discharge. Solutions of nitrates and sulfates जब होंगे OH will discharge. बेटा आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है, ईज ऑफ डिस्चार्ज देखना होता है एनाइंस का, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन इजीली डिस्चार्ज हो जाता है. दैट्स व्हाई सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे. दैट इज SO4 2 नेगेटिव. सो यहां पे आपके पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा बेटा? द सेकेंड इक्वेशन वुड बी OH नेगेटिव. फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन यहां पे OH नेगेटिव है आपके पास, तो बेटा वी विल यूज 4 हाइड्रोक्साइड आयंस, it will release 4 electrons and it will give you 1 oxygen gas plus 2 water molecules. So that is the equation. So beta in this case oxygen gas deposit हो जाती है anode पे. NaCl अगर aqueous है. Now I am moving towards the rule number 3. Rule number 3. Aqueous. और ये कौन सा एक्वियस यूज कर रहा हूं? लेट्स टेक कंसंट्रेटेड. कंसंट्रेटेड NaCl अगर मैं ले रहा हूं बेटा, रिमेंबर व्हेन वी विल हैव अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, इफ इट इज एक्वियस, तो एक्वियस में वी हैव 2 कंडीशंस, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है. इफ वी हैव कंसंट्रेटेड क्लोराइड सॉल्यूशन, इन दैट वे क्लोरीन विल डिस्चार्ज. अगर डाइल्यूट है कोई भी क्लोराइड का सॉल्यूशन, इन दैट वे ऑक्सीजन विल डिस्चार्ज, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल NaCl है आपके पास कंसंट्रेटेड स्टेट में, इट मींस फ्री आयंस कौन कौन से होंगे? वी विल हैव Na पॉजिटिव, वी विल हैव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. केटाइंस के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, जो लेस रिएक्टिव है, एंड वी नो हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम. तो बेटा सोडियम तो डिस्चार्ज नहीं हो सकता, हाइड्रोजन ने डिस्चार्ज होना है, तो एक प्रोडक्ट आपके पास बनेगा हाइड्रोजन गैस, ये डिस्चार्ज हो जाएगी. सोडियम आयन विल नॉट डिस्चार्ज इन दिस केस. क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के केस में क्या डिस्चार्ज होएगा? वी हैव NaCl कंसंट्रेटेड, तो बेटा Cl डिपॉजिट होएगा, Cl डिपॉजिट होएगा, हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट नहीं होएगा. सो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव विल लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉल्यूशन. सो बेटा pH इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की. सॉल्यूशंस pH विल इंक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. FSC में भी ये कंटेंट यूज हुआ, O लेवल्स में भी यूज होता है, A levels में भी ये यूज होता है. So you all are familiar with this concept. Na positive and OH negative will combine together. NaOH की formation हो जाती है by using a solution brine. Brine is a concentrated solution of NaCl with the water. So now we have KNO3. So बेटा KNO3 के केस में free ions कौन से होंगे? We will have K positive, NO3 negative, H positive and OH negative. So out of these two, which one is less reactive? We know hydrogen ion is less reactive. So beta hydrogen gas will deposit at cathode. Nitrate और hydroxide ion के केस में nitrates will never deposit. हाइड्रोक्साइड आयंस डिपॉजिट होते हैं और ऑक्सीजन गैस बना देते हैं. रिमेंबर इट्स इक्वेशन, ये इक्वेशन को प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम में इस इक्वेशन की बैलेंसिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक है. सो ऑक्सीजन गैस विल डिपॉजिट व्हेन हाइड्रोक्साइड्स आयन विल डिपॉजिट, तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पे. सो
O2 will form at anode. Colorless gases will observe at cathode and anode. Both are colorless gases. Only bubbles will observe. ठीक है? Effervescence. Concentrated copper chloride solution है आपके पास. Now we will use the same concept. जो अभी 1, 2 and this one is third rule. Rule number 3. So we will use only these 3 rules. तो बेटा सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा. कॉपर क्लोराइड है आपके पास, कंसंट्रेटेड है. सो फ्री आयंस क्या हैं? Cu2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. इफ वी हैव कंसंट्रेटेड तो कंसंट्रेशन का केटाइंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है ना. यस. सो बेटा वी जस्ट हैव टू लुक इनटू the reactivity series, which one is less reactive, and copper ion is less reactive. तो बेटा हाइड्रोजन डिपॉजिट नहीं होएगा, कॉपर आयन विल डिपॉजिट एट कैथोड. तो कैथोड पे कॉपर मेटल विल फॉर्म. कैथोड पे कॉपर मेटल आ जाएगी. वी हैव Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव. तो बेटा इफ वी हैव कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड आयंस यानी कि ज्यादा हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. सो क्लोराइड आयन विल डिपॉजिट, नॉट द हाइड्रोक्साइड. इन दिस केस हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट नहीं होएगा एंड वी विल गेट क्लोरीन गैस एट एनोड. सो नाउ वी हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, नाइट्रेट चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, कभी भी नाइट्रेट और सल्फेट डिपॉजिट नहीं होंगे. ओनली हाइड्रोक्साइड आयन विल डिपॉजिट. ठीक हो गया. सो वी हैव एक्वियस कॉपर सल्फेट हियर. इसके लिए 2 पॉइंट्स याद रखने हैं. अगर ये तमाम जो प्रोसेस हमने अभी किया है ना बेटा, दैट इज इन द केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. दैट इज इन द केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिए आपने या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो यहां पे इफ वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड तो सेम प्रोसेस ही होना है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर का आयन बना, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन एंड वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन. कॉपर और हाइड्रोजन में से कॉपर आयन विल डिपॉजिट, विल डिस्चार्ज एट कैथोड. हाइड्रोजन नहीं होएगा. आउट ऑफ सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन विल डिपॉजिट एंड सल्फेट विल नॉट गोइंग टू डिपॉजिट ओवर देयर. सो हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट हो जाएगा. तो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या बन रहे हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में वी विल गेट कॉपर मेटल एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड. तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है आपके पास. मैंने कहा these all processes, these all reactions are happening when we are using inert electrodes. और अगर लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं, उसके बाद अपनी इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं. कॉपर सल्फेट अगर हम यूज करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में, इफ वी विल यूज कॉपर इलेक्ट्रोड्स rather than inert electrodes, बेटा इसके लिए याद रखें copper dissolves in its own solution. Metal rod will dissolve in its own solution. अगर जिंक का रॉड है और जिंक सल्फेट यूज किया है तो बेटा जिंक रॉड विल डिसॉल्व इनटू इट्स ओन सॉल्यूशन. If we are using copper sulfate and we are using copper rod, तो copper rod will dissolve into its own solution. ये dissolve का मतलब क्या है? It will dissociate into the ions. I am saying anode dissolves in its own solution. That is our key concept. Key point क्या है? Copper electrode जब मैं use करूंगा तो anode जो होएगा
copper anode will dissolve in its own solution. This is your key concept. In its own solution. What does it mean? कि जो कॉपर एनोड पे जो रिएक्शन होना था वो क्या होएगा? बेटा इट मीन्स कि जो कॉपर मेटल है एनोड पे इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स आयन. ये मतलब होता है डिसॉल्व होने का. ठीक है, कि वहां पे वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉपर मेटल खत्म होती जाएगी, कॉपर मेटल का मास कम होता जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द आयन, कॉपर आयन में, जो कि सॉल्यूशन में मिक्स होता रहेगा. तो रॉड पे क्या रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज. और सॉल्यूशन में क्या बनता रहेगा? केटाइन. तो इस तरह से यहां पे भी इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है. सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट ये पॉइंट आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जब अगर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा तो बेटा कॉपर मेटल डिसॉल्व हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द कॉपर आयन. सो यानी कि ब्लू सॉल्यूशन विल ऑब्जर्व एट एनोड. सो कैथोड पे क्या होएगा? इन द केस ऑफ कॉपर सल्फेट आउट ऑफ कॉपर एंड हाइड्रोजन, कॉपर ने डिपॉजिट होना था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है. Only there is a changing at anode. So copper ion anode पे प्रोड्यूस हुआ और कॉपर मेटल कैथोड पे प्रोड्यूस हुई. This is what we have to understand. ठीक है, पिंक मेटल ऑब्जर्व हो जाएगी कैथोड पे और एनोड पे कॉपर आयन. सो बेटा विद दिस हमने कंप्लीट किया इलेक्ट्रोलिसिस को. सो लेट मी कंक्लूड दिस ऑल टॉपिक by revising these rules. Rule number 1, less reactive cation will deposit. Reactivity series में जो lower होएगा cation that will deposit. One thing. So cation के लिए तो just ये rule है, there is no exception. ठीक हो गया? Rule number 2 और rule number 3, that is for anions. Whenever you will have chloride solution, if it is concentrated, in that case you will get chlorine. If we have dilute solution of chloride ions, so it means hydroxide ion discharge होंगे, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, क्लोरीन नहीं होएगी. ठीक है, एक रूल ये हो गया. Nitrates and sulfates will not discharge at the positive electrode. Which one is positive electrode? That one is anode. ठीक है, पॉजिटिव एनोड है आपके पास, हाइड्रोक्साइड आयन ने डिपॉजिट होना है और ऑक्सीजन गैस ने प्रोड्यूस होना है. ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस गैस. नेक्स्ट, अगर बेटा ब्रोमीन होता और आयोडीन का कोई सॉल्यूशन होएगा, इन दैट केस रिमेंबर कि कोई कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं है. कंसंट्रेशन इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन क्लोरीन सॉल्यूशन. ठीक है, क्लोरीन के सॉल्यूशन पे ये इफेक्ट होएगा. सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर टुडेज session, this video, or if you have further questions regarding electrolysis, so इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.